Dr. R. L. Singh is of the opinion that location and physiographic factors have greatly influenced the climatic characteristic of the country. Though its considerable portion belongs to a subtropical zone, as a whole, it shares the characteristic of tropical monsoon climate, mainly because the Himalayas functioning as an effective meteorological barrier. डॉक्टर आर एल सिंह का कहना है कि भारत की स्थिति व भूआकृति ने जलवायु संबंधी विशेषताओं को प्रभावित किया है। यद्यपि देश का लगभग आधा भाग कर्क रेखा के उत्तर की ओर फैला हुआ है, जो कि उपोष्ण कटिबंध का भूभाग है, लेकिन फिर भी यह उष्ण मॉनसून जलवायु की विशेषताएं रखता है, क्योंकि हिमालय पर्वत एक प्रभावशाली मौसम अवरोधक के रूप में कार्य करता है। In this video, we'll be discussing the different seasons found in India. The climate of India belongs to the tropical monsoon type, indicating the impact of its location in the tropical belt and the monsoonal wind. डॉबिक का कहना है कि मॉनसून दो परस्पर विरोधी मौसम रखने वाली जलवायु है, जहां विशेष रूप से ग्रीष्मकाल में दक्षिण पश्चिमी हवाएं तथा शीतकाल में उत्तर पूर्वी हवाएं चला करती हैं। हवाओं का यह उत्क्रमण ही मॉनसून जलवायु का मूल सिद्धांत है। मॉनसून इज द क्लाइमेट ऑफ कंट्रास्टिंग सीजन्स, स्पेशली the southwest wind in summer and northeast wind in the winter season. Reversal of the wind system is the basic principle of monsoon climate. उसी तरह से आर.एल. सिंह का भी मानना है कि मॉनसून जलवायु की प्रमुख विशेषता मौसम का आवर्तन है। Rhythm is the keynote of monsoonal climate. The Indian Meteorological Department has recognized 4 main seasons in India. First, the winter season, the duration of which is in January and February. The pre-monsoon season or the summer season, ग्रीष्मकाल, जो मार्च से लेकर मई तक. The southwest monsoon season or the rainy season, वर्षा ऋतु, जो जून से सितंबर तक रहती है. And lastly, the post-monsoonal season or the autumn season, शरद ऋतु, जो अक्टूबर से दिसंबर तक रहती है. ट्रेडिशनल इंडियन सीजन, भारत की परंपरागत ऋतुएं. भारतीय परंपरा के अनुसार वर्ष को द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा जाता है. यह ऋतुचक्र दक्षिणी भारत की अपेक्षा उत्तरी तथा मध्य भारत में अधिक प्रचलित है. इसका कारण है कि दक्षिण की अपेक्षा उत्तर में ऋतु परिवर्तन अधिक प्रभावशाली है. In this table we can see the classification of Indian season in 6 different ritus. The first is the Basant Ritu. According to the Indian calendar, it is during the Chet and Vesak months, which is equivalent to March and April of the English calendar. The second is the Grishma Ritu, जो कि ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीनों में, जो कि इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार मई और जून है. तीसरी ऋतु है वर्षा ऋतु, जिसे श्रावण और भादों, which is equivalent to July and August months of the English calendar. The fourth is the Sharad Ritu. According to the Indian calendar, it is during the months of Ashwin and Kartik, which are September and October of the English calendar. The fifth Ritu is the Hemant Ritu. That is during the month of Margashis and Posh, according to the Indian calendar.
and November and December according to the English calendar. The last Ritu is the Shishir Ritu, that is during the months of Magh Fagun according to the Indian calendar and January and February according to the English calendar. The first is the winter season, शीत ऋतु. केंद्रों के अनुसार स्वच्छ आकाश, सुहाना मौसम, निम्न तापमान एवं आर्द्रता, अधिक दैनिक तापमान अंतर और ठंडी एवं मंद गति से चलने वाली उत्तरी पवनें इस ऋतु की मुख्य विशेषताएं हैं. The winter season begins in mid-November in northern India and stays till February or March starting. The temperature decreases from south to north. Days are warmer and nights are colder. The season is extremely important for the cultivation of Rabi crop. In this diagram, we can see the location of the sun rays. India is situated here and the rays of the sun are slant during this season. That is why the temperature conditions are very low. The isotherm of 20 degrees centigrade runs roughly parallel to the Tropic of Cancer, which passes through the middle of India. शीत ऋतु में उत्तरी भारत में तापमान विशेष रूप से नीचे रहता है. उत्तर भारत के अधिकांश भागों में औसत दैनिक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है और कई क्षेत्रों में तापमान हिमांक के भी नीचे गिर जाता है. जनवरी और फरवरी के महीने साल के सबसे ठंडे महीने होते हैं. उत्तरी विशाल मैदान में तापमान 12.5 डिग्री से 17.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है. भारत के प्रायद्वीपीय प्रदेशों में कोई स्पष्ट शीत ऋतु नहीं होती. इस समय दक्षिण भारत में एवरेज टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है. सुदूर दक्षिण में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है. तिरुवनंतपुरम में जनवरी का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस होता है. तटीय भागों में तापमान के ऋतु परिवर्तन का कोई विशेष महत्व नहीं होता. In this map we can see the pressure conditions found during the January month. भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में तापमान कम होने के कारण वहां पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र पाया जाता है. सामान्यतः यहाँ पर 1015 से 1020 मिलीबार वायुदाब मिलता है, जबकि दक्षिण भारत, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में अपेक्षाकृत कम वायुदाब पाया जाता है. 1019 की समभार रेखा उत्तर पश्चिमी भारत में और 1013 मिलीबार की समभार रेखा कन्याकुमारी के निकट से गुजरती है. Here we can see the location of 1019 millibar iso line and this is 1014 millibar isobar line, and the center of India 1017 millibar iso line is passing. In this map we can see the wind direction during the winter season. पिछले मानचित्र में हमने वायुभार की दशाएं देखी थी. उन्हीं के परिणाम स्वरूप उत्तर पश्चिमी उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी न्यून वायुदाब वाले क्षेत्रों की ओर वायु चलती है. वायुदाब प्रवणता प्रेशर ग्रेडियंट कम होने के कारण ये पवनें मंद गति से चलती हैं. पवन की दिशा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में
पश्चिम तथा उत्तर पश्चिमी बंगाल में उत्तरी और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उत्तर पूर्वी होती है। This is the direction of the wind. High pressure area is in the Thar Desert region, in Punjab, Haryana, and low pressure area is in Bay of Bengal, Arabian Sea, and the Indian Ocean. In this map, we can see the rainfall coming during the winter season. शीतकालीन मॉनसूनी पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, जिसके कारण वो वर्षा नहीं करती। ये पवनें पश्चिम बंगाल को पार करके जब बंगाल की खाड़ी में आती हैं, तो वहां से वो नमी प्राप्त करती हैं, जिसके कारण पश्चिमी घाट से टकराकर तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक और दक्षिण पूर्वी केरल में भारी वर्षा करती हैं। उसी तरह से हम देखेंगे कि उत्तर भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी विक्षोभों द्वारा हल्की वर्षा होती है और यह वर्षा की मात्रा उत्तर से उत्तर पश्चिम की ओर कम होती जाती है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी के तीनों महीनों में औसत वर्षा की मात्रा हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक होती है, 60 सेंटीमीटर, पंजाब में 12 सेंटीमीटर, दिल्ली में 5.3 सेंटीमीटर, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार के मैदानों में 1.8 से 2.5 सेंटीमीटर के मध्य होती है। शीतकालीन वर्षा की मात्रा कम होते हुए भी रबी की फसलों के लिए, स्पेशली गेहूं की कृषि के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। In our next video, we'll be discussing about the other seasons found in India.